So by the end of 3 years, Ashok, that's why we say this is going to be truly world class, and that's why we say this is going to actually bring Ayodhya on the world map, because it's not only temple, but I mean the way it really looks like with those huge amphitheaters, not to forget the Sanctum Sanctorum, the gallery, the museum, and a massive tourist attraction for the international tourists as well, not only for us but those who will come to UP. बिल्कुल सकला बिल्कुल ठीक कह रही है। जो मंदिर था आप देखेंगे कि इसमें परंपराओं का तो जो मंदिर में एक मंदिर निर्माण में मंदिर की जो वास्तुकला होती है वो तो है ही, उसका स्थापत्य कला हो उसका ध्यान रखा गया है, लेकिन साथ साथ यहाँ पर आधुनिक स्वरूप भी जो है साफ तौर पर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और एक विश्व का एक बहुत बड़ा केंद्र। और सिर्फ अयोध्या की हम बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ मंदिर की बात नहीं कर रहे सकल, बार बार हम कह रहे हैं कि अयोध्या का भी कायाकल्प होने जा रहा है। और आपने अयोध्या में अभी अरुण आपको बता रहे थे रेलवे स्टेशन की बात, विश्व क्लास वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनेगा, लेकिन साथ साथ वहां पर मेट्रो भी अब आप पहुंचेंगी, मेट्रो वहां पर कनेक्टिविटी होगी, और पूरी अयोध्या नगरी में बहुत बड़े क्षेत्र में वन क्षेत्र भी बनाया जा रहा है, वेटलैंड होगा वहां पर। तो इस तरह से एक बहुत कह सकते हैं कि आदर्श नगरी जो है उस अयोध्या को बनाने की तैयारी जो है करी जा रही है। Praful Ketkar continues to be with us, and we also have historian Makhanlal ji with us, both of you. Thank you very much for staying with us, Praful and Makhanlal ji. Praful, I'm going to come to you. I'm sure you saw that special report put forth by our team and that presentation. Praful, your thoughts on it? It can't get bigger than this. I mean, look at the majestic view of this, the temple, and I think it's more than that. Absolutely. See, to say you have a specific concept and shape, it is. Let's try and fix that line with Praful. Professor Makhanlal ji, your thoughts as we fix Praful's order. There's a technical snag there. Professor Makhanlal ji, आपने इतिहास की बात की, बिल्कुल। हमने आपको 3 साल बाद भविष्य का जो मंदिर है वो दिखा दिया कि किस तरह का भव्य और दिव्य मंदिर होगा। क्या कहते हैं आप? इतना अच्छा लग रहा है कि 1980 के दशक में जब ये सब चीजें इतिहासकारों के बीच में आई, तो कम से कम मुझे भी बहुत नहीं लग रहा था कि मेरे जीवन काल में ये हो पाएगा, क्योंकि बाकी जो हमारे अग्रज थे, बाकी जो साथी थे इतिहासकार पुरातत्ववेत्ता, वो तो इस दुनिया से जा चुके हैं। मैं ही अकेला बचा, शायद इसलिए कि मेरी सबसे कम उम्र थी उस वक्त, 34-35 साल जब मैं जुड़ा। बहुत अच्छा लग रहा है। और शकल ने एक बात कही जो बहुत अच्छी लगी मुझे, इट कांट बी बिगर देन दैट, यस, बट डेफिनेटली इट हैज टू बी as big as this, because Lord Ram is Lord of the universe, not just Ayodhya, not just India, and he is spread around the world, continuing for centuries and centuries and millennia, expresses that he is something conveying the eternal value for the humanity and not for just 1 or 2 persons. And that is what eternity is all about. Eternity is something which is timeless, goes beyond time recognition. And that is where I think that today, through me, I am conveying to my departed friends, archaeologists and historians who are no more in this world, that wherever they are, I am sure they are near Lord Ram. They have laid their life for Lord Ram, and they must be watching from there this grand thing which is happening. And I'm sure that I will be making several trips before it is opened. And do you have anything specifically to talk about the specifications of the temple? We have this research paper. It talks about the 3 mandaps, shikhar, with the 5 mandaps. Yeah, I'm sorry, 5 mandaps, shikhar. There were modifications over a period of time, architecturally speaking, and many would say that it's also based on Vastu Shastra has also been followed. A bit of a historical perspective. For the benefit of our viewers, the architecture of it, the specifications of it, the modifications that were made to the final design, You see, Sakal, for making a temple is always considered a body of human being, and Garbhagriha is the brain, Shikhar is the brain. And all over India, there are 3-4 styles of temple. South Indian temple style is very different. It's called Dravidian style. Then you have got Orisian style or Kalingan style of temple where Lingaraj is there.
and also Lord Jagannath temple is there. There is Besar style of temple. When you go to Gujarat, that is very different. And in North India, there is called Nagar style of temple. Ram temple is fantastic amalgamation of Besar and Ram style of temple, Odisha and North Indian style of temple. And always remember, temple is somewhere where Lord is living, Ram is living, and the difference between any other belief system and Indian belief system is God does not live in heaven alone, inaccessible before the death. No, in Indian concept, God is human being who comes to on this earth, lives as human being among us and goes back. Not only he goes back, even after going, he remains in human form, enjoys human life and all the possession. That is why Ram, whether any God is there, there is evening, morning, puja, then you offer food, then you offer hope, because he lives and enjoys life. And not only that, always remember that in no other faith, no other beliefs, Lord can hold property in his own name. And that is why in Indian custom, most of the temples, most of the properties, most of the bank accounts you will find in the Lord's name. You have only the manager appointed. You are not the Lord, you are just representative of that. And that is where, if you read carefully, Supreme Court's judgment, Supreme Court judgment does not give the land to any individual, any organization. It gives land to Lord Ram. And what it appoints is a trust which will look after all the interest of Lord Ram and his properties. Yes. Very important, we have to remember that. Yes. And all these things, Shakal was talking about all this tradition, historical tradition, and that is where all this has got accumulated, assimilated here. And within this tradition, remember, all the provisions are made for his dress, for his puja, for his भोग, for his प्रोफेसर मक्खनलाल जी, हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त जो है दृश्य हम जो देख रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत जी वहां पर पहुंच चुके हैं और तमाम जो वहां पर साधु संत और महामंडलेश्वर वहां पर जो हैं, जो तमाम पूजनीय लोग हैं, वो उनका चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेते हुए, आपने देखा साध्वी ऋतंबरा और उमा भारती जी भी दिख रही हैं। साध्वी ऋतंबरा और उमा भारती जी एक लंबे समय तक इस आंदोलन से जुड़ी रहीं और इसलिए जो है उनकी उपस्थिति भी आज बहुत खास है। चंपत राय जी हैं वहां पर जो सबका परिचय करवा रहे हैं मोहन भागवत जी से। ये आप देख रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत जी वहां पर हैं और इसके अलावा वहां पर महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी और तमाम अन्य जो महान विभूतियां हैं और साथ साथ स्वामी रामदेव भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो ये प्रमुख लोग वहां पर हैं और इस वक्त हम आपको जो दृश्य दिखा रहे हैं ये वहां पूजन स्थल का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले सभी जो गणमान्य और जो प्रमुख अतिथि थे, जो निमंत्रित व्यक्ति थे, वो वहां पर पहुंचने शुरू हो गए। आज का दिन सबके लिए बहुत खास, बहुत शुभ दिन है, बहुत एक ऐसा ऐतिहासिक दिन है जिस दिन की बहुत लंबे समय तक लोग उम्मीद कर रहे थे। जिस सपने को लोगों ने एक लंबे समय से देखा, वो सपना आज पूरा होने जा रहा है। सबके राम, अपने राम और सब में राम। जी हाँ, सब में राम, राम सब में है और इसीलिए राम का मंदिर जो है वो दरअसल राम का मंदिर नहीं, वो राष्ट्र का मंदिर है, देश का मंदिर है, जो आज जिसके लिए भूमि पूजन होने जा रहा है और आज से जिसकी शुरुआत होने जा रही है। In fact, as Bhumi Pujan of Ram Temple is all set to take place in a few moments from now, Prime Minister, who has already arrived there in Lucknow, will initiate the religious ceremony. It's a groundbreaking ceremony that will... जी हाँ, इस वक्त ये हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हैं, लेकिन ये हम वहां से दृश्य आपको लगातार दिखा रहे हैं अयोध्या से। अयोध्या में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है, प्रधानमंत्री की प्रतीक्षा हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ वहां पर सभी लोग अपनी अपनी तरह से जो लोग वहां पर उपहार लेकर आए हैं, जो मंदिर में जो लोग चढ़ाना चाहते हैं, संभवतः ये उसी तरह का कोई ताम्र पत्र है, क्योंकि सबकी आस्था है और पूरे देश भर से मिट्टी और पानी जो है वो अयोध्या पहुंचा है। पूरे देश की मिट्टी, पूरे देश का पानी प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित होने पहुंचा है, क्योंकि जैसा हम बार बार कह रहे हैं, प्रभु श्री राम
सिर्फ भगवान नहीं है बल्कि पूरे भारत को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। प्रफुल्ल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल जी, तो आज एक ऐतिहासिक दिन, जो राष्ट्र मंदिर, हम बार बार इसको राम मंदिर की कह रहे हैं लेकिन शायद ये राष्ट्र मंदिर है, इसको राष्ट्र मंदिर कहना उचित होगा। और इस राष्ट्र मंदिर से पूरे देश को जोड़ना वो एक बड़ी प्रक्रिया है, जिसकी कह सकते हैं कि आज एक बड़ी शुरुआत हो रही है, क्योंकि जो लोग इस पूरे मुकदमे को लड़ रहे थे लंबे समय तक, उसमें जो विरोधी पक्ष थे, विरोधी पक्ष को भी आज सादर निमंत्रित किया गया। और पहला जो आज निमंत्रण पत्र था वो तो उनको गया जो वर्षों से वहां पर लड़ रहे थे कि राम मंदिर वहां पर नहीं होना चाहिए क्योंकि राम का जन्म नहीं हुआ, उनको आज पहला निमंत्रण पत्र गया। तो इसका मतलब संदेश साफ है कि पूरे भारत को इस राष्ट्र मंदिर से जोड़ना है, पूरे भारत को एकता के सूत्र में पिरोना है, यह भाव है कहीं ना कहीं। निश्चित अशोक, देखिए यही प्रभु श्री राम का आदर्श है। प्रभु श्री राम बार बार एक तरह से वार्निंग देने के बाद फिर युद्ध में जाते हैं, और युद्ध में रावण की पराजय होने के बाद भी वो लंका में रुकते नहीं है, वो विभीषण को सौंप कर आते हैं। वो शत्रुता रावण से या रावण के वंश से नहीं करते, उस कृत्य से, उस वृत्ति से करते हैं। यही प्रभु श्री राम का संदेश है। इसीलिए जिन्होंने श्री राम के अस्तित्व को नकारा, जिन्होंने यहाँ पे मुकदमा लड़ा, जिन्होंने कभी ये कहा कि राम का शायद अस्तित्व था ही नहीं, जिन्होंने कभी अयोध्या ना जाकर आर्कियोलॉजिकली गलत तरीके से हलफनामे भी पेश किए, उन सबको माफ करके आज पूरे देश को एक तरह से ये राष्ट्रीय सिंबल जो बन रहा है, एक नेशनल मॉन्यूमेंट बन रहा है, उसको सेलिब्रेट करने का समय आ गया है। इसीलिए हम देखते हैं कि लगभग 2000 स्थानों से मिट्टी और जल अयोध्या में पहुंचा है। 135 अलग अलग परंपराओं के साधु संत वहां पे पहुंचे हैं। जिन दो प्रमुख पक्षकार जो अयोध्या से थे, जो मंदिर के पक्ष में थे और मंदिर के विरोधी भी थे, वो दोनों पक्षकार भी आज वहां पे उपस्थित रहेंगे। तो मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक क्षण है ही, लेकिन ये ऐतिहासिक क्षण हमारी हजारों वर्षों की इतिहास की परंपरा और आदर्शों को जोड़ने वाला भी क्षण है। और इसीलिए मुझे लगता है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रीजन, कास्ट, हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। ये सिंबल जो है, this momentous day today should not be viewed, Praful, through the political prism. Finally, let's just subtract, in fact, disconnect the politics out of it completely. As Ram Madhav said a while back, that this is going to be a national temple. And I think that's a very, very strong statement. The messaging is loud and clear. Absolutely. Don't make it about religion. Don't make it about politics. Don't communalize it. It's more than that. It's larger than that. As I have been saying, and as I quoted, let Ashok ji Singhal, who led this entire movement, he said it is not at all about politics. It is not just about temple. It is reconstruction of Bharat. It is reviewing Bharat, and liberating the real idea of Bharat from the concepts like iconoclasm, the pseudo-secularist ideas that were imposed post-colonial rule. So it is a kind of liberation. So we are celebrating our national ethos and identity that we have built up for centuries together. Now we are seeing it a symbol. Praful, but don't you think it's a karara jawab to the lobby? Because I think this is something which also consolidates the secular credentials of our country. Because as we've been talking on this special broadcast, Praful, that this has taken Ayodhya to the world map. This has taken Uttar Pradesh to the world map. And Ram is not only the faith associated with the Indians, but it's across the globe, isn't it? Absolutely. As Professor Makhanlal ji said, Southeast Asia he talked about, but Sakal, you won't believe, for last 2 days, at least from 12 to 15 countries, I am getting messages. Is there any provision to get prasad for 5th August ceremony, overseas?
So Suriname, Guyana, Fiji, US, European continent, from everywhere people are asking, is there any possibility? We will view it, we will watch it online, but how can we get the prasad of Prabhu Shri Ram? That is the sentiment globally. So people who, you know, just viewed entire Ram Janmabhoomi movement from the political prism, the lobby that did their best, either in the name of election or now in the name of Morat, tried to somewhere, stall this entire process of unification and connecting to the civilizational roots of Bharat. That they have got a, a response from people, even politically, but more than politically, I would say this is a cultural, social response of our national ethos. That is how we connect to the Ram and Ramayana. And unless the people who see Indian reality from the Western prism understand this, they will remain disconnected to Indian reality. But Lord Ram, if I'm not wrong, in fact, Praful, I remember I once covered International Sanskrit Conference in Bangkok. And you have Lord Ram's followers not only in Thailand but across the globe. And mind you, these are not Indians, but they follow Lord Ram. They follow Ramayana. प्रफुल्ल, आप कुछ कहें उससे पहले मैं एक चीज जोड़ूं यहाँ पर, जो आप अभी जिक्र कर रहे थे और जो सकल ने भी कहा। मैं कुछ साल पहले जो मैं अपना अनुभव एक छोटा सा बता रहा हूं कि मैं पोर्ट ऑफ स्पेन गया था और पोर्ट ऑफ स्पेन में मुझे वहां पर पता चला कि वहां पर हर शनिवार को वहां पर जितने भारतीय मूल के लोग रहते हैं, हर शनिवार को वो किसी एक घर में इकट्ठा होते हैं और वो कहते हैं कि हम किसी एक घर में इकट्ठा होंगे और उनकी युवा पीढ़ी भी जाती है और शनिवार को पोर्ट ऑफ स्पेन में वहां का जो रेडियो है, रेडियो पर 1 घंटा रामायण का प्रसारण होता है और वो जो शनिवार की गैदरिंग होती है, लोग गैदर होते हैं इसलिए कि वो रामायण का पाठ रेडियो पर सुनते हैं और उसके बाद फिर सब लोग सामूहिक रूप से भोज करते हैं। तो ये राम और रामायण की और राम कथा की ताकत है जो देश को और दुनिया से जोड़ती है। अब प्रफुल्ल, ये क्या, ये भाव क्या है, ये जो पूरी दुनिया को कनेक्ट करता है, जोड़ता है? देखिए अशोक, यही धर्म की संकल्पना है। जैसे प्रोफेसर मक्खनलाल भी कह रहे थे कि धर्म तो यूनिवर्सल होता है। हमने भारत धर्म की और लोकमान्य तिलक की हमने अभी उनकी स्मरण दिन मनाया 100वां। उन्होंने एक बहुत अच्छा भाषण दिया है, बनारस में उन्होंने दिया था, जिसमें उन्होंने भारत धर्म की संकल्पना कही थी। वो भारत धर्म क्या है? वो बेसिकली यूनिवर्सल कंसेप्ट है। रामायण क्या है? रामायण में विलन जो है वो उपासना पद्धति के आधार पर नहीं है। रावण भी अपने आप में बहुत बड़ा शिव भक्त था, ज्ञाता था, लेकिन उस ज्ञान का भी अहंकार होता है तो क्या होता है, उसका वो एक तरह से एक सिंबल बनता है। तो रामायण का हर पात्र, इवन विलन भी कुछ ना कुछ सिखाता है। बिल्कुल प्रफुल्ल, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि हमें सीधा अयोध्या चलना है। रामायण का, राम के जीवन का हर चरित्र, हर जो अंश है वो हमको कुछ ना कुछ सिखाता है और इसीलिए राम जो है राष्ट्र पुरुष हैं। और हम आपको थोड़ी देर में अयोध्या ले चलेंगे क्योंकि इस वक्त सबकी निगाहें अयोध्या पर लगी हैं। लगातार अयोध्या में क्या कुछ हो रहा है ये हम आपको सीधा लिए चल रहे हैं अयोध्या। जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय जय राम। नमस्कार, आदर, अभिनंदन, आभार। जन जन में बसने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या से श्री राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन समारोह के सीधा प्रसारण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भारत की गौरवशाली आध्यात्मिक सांस्कृतिक परंपरा का प्रतिनिधित्व करने वाली अयोध्या प्राचीन काल से ही धर्म और संस्कृति की परम पावनी नगर के रूप में संपूर्ण विश्व में विख्यात है। अथर्ववेद में इसे देव निर्मित 8 चक्रों और 9 द्वारों वाली स्वर्णिम नगरी के तौर पर रेखांकित करते हुए कहा गया है, अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पुरयोध्या तस्याम हिरण्यमयः कोशः
स्वर्गो ज्योतिषा वृत्तः। सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ कही जाने वाली श्री अयोध्यापुरी का कण कण राममय है। भक्ति के शास्त्रीय ग्रंथों में ईश्वर प्राप्ति के साधनों के स्वरूप में 4 तत्व माने जाते हैं: नाम, रूप, लीला और धाम। श्री अयोध्यापुरी की गणना धाम में होती है और राम के नाम का स्मरण, उनकी लीलाओं का वर्णन और दिव्य विग्रहों का दर्शन यहाँ चतुर्दिक प्राप्त होता है। अर्थात भगवत प्राप्ति के समस्त साधन यहाँ स्वमेव उपलब्ध हैं। धर्मशास्त्रों और ग्रंथों में अयोध्या के दिव्य और पार्थिव स्वरूपों का उल्लेख मिलता है। शिव संहिता के अनुसार परलोक की अयोध्या दिव्य गुणों वाली है और पृथ्वी पर अयोध्या देवताओं की लीला भूमि है और इन दोनों के स्वामी प्रभु श्री राम हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। 7 मोक्षदायिनी नगरियों में अयोध्या सर्वप्रथम है, सर्वोत्तम है। अयोध्या की महिमा और गरिमा, भगवान श्री राम और अयोध्या की महिमा चाराचर में, चारों भुवन में व्याप्त है। विश्व प्रसिद्ध है भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या की महिमा। युगों युगों से साक्षी है अयोध्या, सनातन संस्कृति के युगों युगों से साक्षी है। सरयू की धारा भगवान श्री राम के अस्तित्व की और विश्व संस्कृति के सामने राम राज्य के सर्वोत्तम संकल्पना की। रामलला आज राम सृष्टि के कण कण में हैं, सदैव से रहे हैं और सदैव रहेंगे। आज के अगर कार्यक्रम की बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री का आगमन अब से कुछ देर बाद होगा। वो सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे। मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले प्रभु राम के परम भक्त हनुमान जी के पूजन से आज्ञा लेनी होती है। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री रामलला के दर्शन और पूजन के लिए आएंगे। फिर मुख्य पूजा स्थल की ओर जाएंगे, जहां भूमि पूजन और मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास का कार्यक्रम होगा। और उसके बाद प्रधानमंत्री मंच पर जाएंगे और जितने भी आमंत्रित साधु हैं, संत हैं, अतिथि हैं, उनको इस पावन और दिव्य अवसर पर संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम स्थल पूरी तरह से सज धज कर तैयार हो चुका है। उस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा अतिथिगण कर रहे हैं। अतिथियों का आगमन हो चुका है। उन्होंने अपने अपने निर्धारित स्थानों पर अपना स्थान ग्रहण भी कर लिया है। वैश्विक आपदा के बीच हो रहे इस दिव्य और भव्य समारोह में सामाजिक दूरी का पूरी तरह से ख्याल रखा गया है। एक निशान बनाया गया है और उसी जगह पर अतिथि आकर बैठ रहे हैं। अतिथियों के आगमन के बीच जहां ये स्वरूप दिव्य से दिव्यतर होता जा रहा है, भव्य से भव्यतम होता जा रहा है, तो बस प्रतीक्षा है उस शुभ घड़ी की कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय का यहाँ शुभ आगमन होगा और वो इस दिव्य और भव्य मंदिर की आधारशिला रखेंगे। अयोध्या नगरी अपने आप में दिव्यताओं से परिपूर्ण है। इसके नामाक्षरों की महिमा स्कंद पुराण में मिलती है, जिसमें अक्षर आकार को ब्रह्म, यकार को विष्णु और धकार को रुद्रवाची माना गया है। अर्थात त्रिदेवों की शक्ति स्थली के रूप में अयोध्या को प्रतिष्ठा प्राप्त है। और आज समस्त संत महंत विद्वत जन इस शुभ घड़ी में श्री अयोध्यापुरी में उपस्थित हैं, विराजमान रामलला के इस दरबार में। तो ये एक अलौकिक और अद्भुत क्षण है। भगवान श्री राम का अवतरण अयोध्या में हुआ। भगवान श्री राम के किलकारी अयोध्या में गूंजी। दशरथ नंदन भगवान श्री राम रघुकुल नायक कहे गए। भगवान श्री राम ने यहीं पर दशरथ के आंगन में
चारों भाइयों समेत बाल्यकाल अपना बिताया। इसी अयोध्या ने भगवान श्री राम का वनवास देखा। इसी अयोध्या ने राजा को सन्यासी बनते देखा। इसी अयोध्या ने सन्यासी को राजा भी बनते देखा। इसी अयोध्या ने चरण पादुका रखकर भ्रातृ प्रेम के सर्वोत्तम उदाहरण भरत को राजकाज चलाते से देखा। इसी अयोध्या ने भगवान श्री राम के सर्वोत्तम स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम को देखा। आज यही अयोध्या पूरी तरीके से आज सजी धजी संवरी इस ऐतिहासिक युगांतकारी पल के साक्षी बनने के लिए तैयार है, जब भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर दिव्यतम भव्यतम मंदिर का पुनर्निर्माण होगा। भगवान श्री राम का बाल्यकाल यहाँ बीता तो यहीं से वो वनगमन किए और अंततः यहीं पर राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने राम राज की संकल्पना को साकार करते हुए विश्व में सर्वोत्तम उदाहरण का उन्होंने सर्वोत्तम उदाहरण पेश किया। दशरथ महल, जैसा कि नाम है कि भगवान राम के पिता श्री राजा दशरथ का ये महल है, जहाँ की दिव्य आरती इस समय हम सब देख रहे हैं। ये वही महल है जहाँ भगवान राम ने जन्म लेकर घुटनों के बल चलते हुए किलकारियां भरी और कौशल्या, सुमित्रा, केकई के साथ साथ महाराजा दशरथ को भी आनंदित किया। ये वही दशरथ महल है जहां राम की क्रीड़ा स्थली के रूप में इसका वर्णन मिलता है। भगवान राम की बाल लीलाएं सुलभ हैं, सभी को आकर्षित करती हैं, सभी को मोहती हैं, सभी को प्रेरित करती हैं। वो ठुमक ठुमक कर यहीं चले थे। अयोध्या का अनुपम नजारा, और यहाँ पर गणमान्य साधु संत। राम भारतीय जनमानस में कुछ इस तरह रचे बसे हैं कि हर व्यक्ति के अंदर राम है और अयोध्या के जन जन में राम निवास करते हैं और हर व्यक्ति संयमित और अनुशासन का पालन करते हुए इस समारोह को सफल बना रहा है। अगर आप अयोध्या आएं तो कनक भवन का एक अपना ही महत्व है। मान्यताओं के अनुसार जब राम जानकी यानी सीता मैया को विवाह कर अयोध्या लाए थे तो कैकई ने मुंह दिखाई की रस्म के तौर पर सीता मैया को कनक भवन उपहार में दिया था। भगवान श्री राम और सीता माता कनक भवन में ही निवास करती हैं। पूरी दुनिया में सीता और राम की पूजा होती है, लेकिन कनक भवन में सीता मैया कनक विहारिणी और प्रभु श्री राम कनक बिहारी के नाम से भी जाने जाते हैं। 3 अगस्त से चलने वाला भूमि पूजन का कार्यक्रम अलग अलग तरीके से अयोध्या में वैदिक परंपराओं, वैदिक मंत्रोच्चारणों के बीच हुआ। भगवान हनुमान अयोध्या के रक्षक माने जाते हैं, अधिष्ठाता माने जाते हैं। प्रधानमंत्री सबसे पहले पहुंचकर पवन सुत के दर्शन करेंगे। गर्भगृह में जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजन करेंगे वहां संत पहुंच चुके हैं। तकरीबन 35 संप्रदायों के 135 संत वहां पर मौजूद हैं। पवन सुत को अयोध्या के परंपरा है कि लोग यहाँ पर पहुंचकर पवन सुत के दर्शन करते हैं। प्रधानमंत्री सर्वप्रथम वहीं पहुंचेंगे और अनेक संप्रदायों के संत महात्मा यहाँ पहुंचे हैं। ये वही स्थान है गर्भगृह का जहाँ पर अभिजीत मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान श्री राम के दिव्यतम भव्यतम मंदिर के लिए भूमि पूजन करेंगे और आज कार्यारंभ शुरू होगा। उस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा जितनी आकुलता, व्याकुलता और व्यग्रता के साथ कोटि कोटि जनमानस कर रहा है, उतनी ही व्यग्रता और आकुलता के साथ मानो प्रकृति भी उस शुभ घड़ी का साक्षात्कार करना चाहती है। राम लला विराजमान अपने भ्राता के साथ
अपने उस अस्थायी भवन में विराजित हैं और आज वो भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय को आशीर्वाद देंगे, क्योंकि वो भूमि पूजन के पूर्व आकर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। बीच में सबसे ऊपर रामलला विराजमान है, जबकि उनके चरणों में भरत जी का स्थान है। उनके दोनों तरफ शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी विराजते हैं। ये भव्य सलिला सरयू जो आकर्षित करती है, मोहती है। नेत्रजा कहते हैं इन्हें, क्योंकि श्री हरि के नेत्रों से इनकी उत्पत्ति हुई है। इन्हें रामगंगा भी कहते हैं। वाशिष्ठी के नाम से भी ये जानी जाती हैं, क्योंकि गुरु वशिष्ठ इन्हें स्वर्ग से लेकर धराधाम पर यानी कि यहाँ श्री अवधपुरी में लाए थे। ये एक विहंगम दृश्य अयोध्या का जो सभी को मोहता है। ये क्रीड़ा स्थली है हमारे आराध्य, हमारे इष्ट प्रभु श्री राम की। तुलसी उद्यान गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने प्रभु श्री राम के पूरे जीवन का अनूठा वर्णन रामचरितमानस में किया, और रामचरितमानस जो एक आदर्श है करोड़ों भारतीयों के लिए। अयोध्या सिर्फ एक बसावट नहीं है, यहाँ के कण कण में राम और श्री राम के मन में राम नगरी बसती है। अयोध्या जीवन है, अयोध्या सभ्यता है, अयोध्या हमारे दैनिक जीवन के मूल में है। इस नगरी को महान और सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं प्रभु श्री राम, और श्री राम भक्त आज इस दिव्य और अनुपम क्षण का साक्षी बनने के लिए यहाँ मौजूद। इस युग की सबसे विलक्षण घटना के साक्षी बनने के लिए विशिष्ट आमंत्रित जन गणमान्य व्यक्ति पहुंच चुके हैं समारोह स्थल पर। भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर दिव्यतम भव्यतम मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्यारंभ आज होगा। प्रधानमंत्री के करकमलों से भूमि पूजन होगा और भगवान श्री राम की इस नगरी का, अयोध्या नगरी का सांस्कृतिक, बौद्धिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक पुनर्स्थापना का भी आज दिन है। यहाँ पर केवल एक मंदिर नहीं बनेगा, भगवान श्री राम का मंदिर ही नहीं होगा, ये राष्ट्र मंदिर होगा। ये नए भारत के निर्माण के लिए एक सोपान होगा और साथ ही साथ ये सनातन संस्कृति का ऐसा प्रकाश स्तंभ होगा जिसे देखने के लिए दिग्दिगंत से समूची दुनिया से लोग पहुंचेंगे। पूरी तरीके से सभा मंडल को सुसज्जित किया गया है इस ऐतिहासिक युगांतकारी क्षण के साक्षात्कार करने के लिए। प्रधानमंत्री यहीं पर भूमि पूजन करेंगे अभिजीत मुहूर्त में। अभिजीत मुहूर्त वही मुहूर्त जब भगवान श्री राम का अवतरण हुआ था। अभिजीत मुहूर्त में ही आज भूमि पूजन और कार्यारंभ होगा भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर दिव्यतम भव्यतम मंदिर के पुनर्निर्माण का। जहां पर भूमि पूजन हुआ है वहां पर पुष्पों से बहुत ही सुंदर से ढंग से लिखा हुआ भय प्रगट कृपाला आपने देखा होगा अपनी स्क्रीन पर कुछ ही क्षणों पूर्व। और ये शायद इस बात का द्योतक कि यहाँ सब एक बार पुनः भगवान श्री राम के एक अवतरण, उनके एक भवन के अवतरण की प्रतीक्षा में यहाँ पर आतुर हैं। कहते हैं जही दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीर्थ सकल तहाँ चली आवहीं। राम का नाम जब जब जहाँ जहाँ स्मरण किया जाता है समस्त तीर्थ स्वयं वहाँ एकत्र हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से आज समस्त तीर्थ इस अयोध्या धराधाम पर इस सुंदर और इस मनोरम घड़ी का अवलोकन करने के लिए, साक्षी बनने के लिए इतिहास के इन क्षणों का, वो यहाँ पर एकत्र होंगे। उस पर साधु संतों विद्वत जनों की ये संगत आज अयोध्यापुरी अपने दिव्यतम स्वरूप में आलोकित हो रही है। इसकी ऊर्जा, इसका रोमांच यहाँ पर महसूस किया जा सकता है। लेकिन यदि आप अपने अपने घरों में बैठकर दूरदर्शन के माध्यम से हमारा ये सजीव प्रसारण देख रहे हैं तो यकीन मानिए वो रोमांच आप तक अवश्य पहुंच रहा होगा। उस घड़ी के आने में थोड़ी सी और देरी है, कुछ क्षणों का और विलंब। बस इसी विलंब को, उसी घड़ी को काटने की प्रतीक्षा करते हुए हमारे अतिथिगण, गणमान्य साधु संत
कुछ ही क्षणों में माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन होगा और वो दिव्य घड़ी शुभारंभ हो जाएगा। इतिहास की वो एक नई इबारत आरंभ हो जाएगी लिखी जानी। राम जन जन के राम हैं।